Hello everyone. It's 11:16 p.m. and it's my very first pre-recorded video of your lecture. Basically, these days we teachers are very busy in the admission duties. That's the reason your classes might not be regular. And today I couldn't take your class because of my admission duty commitment. Therefore, I'm recording this class today only so that you people can watch this video, this lecture tomorrow because I will be there in the admission duty tomorrow as well. There are some pending admissions which we have to complete by tomorrow only. That's why I'm recording this video as of now so that we all can simultaneously do both the work. Fine. So I'm going to share my screen first. Now, अभी तक हम ऑपरेटिंग लीवरेजेस की स्टडी कर चुके हैं under the leverage analysis, and we had also started in the last class the financial leverage. And I hope most of those who take my classes regularly, they must know that they must be aware of the fact that what exactly is the operating leverage and what is the financial leverage. So within 1 or 2 minutes, I will give the very quick recap of the operating leverage and the financial leverage. Then I'll be continuing with the financial leverages discussion. In the leverage analysis, in the leverage analysis, what we had already seen that there are two type of leverage studies. Two type of leverage studies. The first leverage study, which we had already done, which is operating leverages. Operating leverages. Now, under the operating leverages, we get to know the operating leverages. It analyzes the company's or an organization operating risk. Operating risk. It basically measures this operating leverage. It basically measures whether a company's cost of capital or the cost structure contains fixed cost or not. Fixed cost or not. अगर किसी कंपनी के cost structure में fixed cost होगी तो definitely that company will have operating leverages, which is known as DOL, degree of operating leverage, that would be surely more than 1. यानी अगर किसी कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 से ज़्यादा है, इसका सीधा सा मतलब होगा कि उस कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है, इन द सेम वे फिक्स्ड कॉस्ट भी प्रेजेंट है. This operating leverages, we have already seen this operating leverages. The formula of this operating leverages was percentage change in what? Percentage change in EBIT. How much change is in the EBIT because of due to changes in sales. सेल्स में कितने चेंज होने की वजह से आपके EBIT में कितना चेंज आया, दिस इज समथिंग द ऑपरेटिंग लेवरेजेस, राइट. इफ इट इज मोर देन 1, इट मीन्स सेल में अगर 1% का चेंज आता है तो EBIT में 1% से ज़्यादा का चेंज आएगा. ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट. इसको हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे, तो थियरी पर्पस के लिए इतना काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेजेस को समझना. Now I'm moving our discussion to the next type of leverages, which is known as financing leverages. Finance leverages. Now we really need to understand this finance leverages. What is this finance or financing leverages? जिस तरह से हम ऑपरेटिंग लेवरेजेस में ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करते हैं, in the same way in financial leverages we measure the financing risk of the company. Finance risk of the company. What can be the fixed finance risk of the company?
मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने डेट लिया और इस डेट की वजह से कंपनी हैज़ टू पे अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करती है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ये होगा कि हो सकता है द कंपनी मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू पे इट बैक द डेट और द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। यानी एक ऐसा रिस्क कंपनी का जिसमें कंपनी अपना डेट पूरा ना कर पाए, पे ना कर पाए, या अपने फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कमिटमेंट यानी इंटरेस्ट को पूरा ना कर पाए। दिस इज समथिंग द फाइनेंशियल रिस्क। तो देयरफॉर हम देख चुके हैं इसे फाइनेंशियल लेवरेजेस को। फाइनेंशियल लेवरेज ये बात करता है, ये एनालिसिस करता है, इट raises or it talks about the presence of fixed financial charges, fixed finance charge, which is interest, or I can say debt in the capital structure of a firm. Capital structure of a firm, right? देखिए, अगर फाइनेंशियल लीवरेजेस की हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज विच इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL, इफ इट इज मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें ये समझना है इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन वन, इट सिंपली shows us, it simply conveys us that there is a fixed financial charges in the form of interest, यानी कंपनी ने डेट मनी लिया हुआ है। यानी कि ये फाइनेंशियल लीवरेज हमें ये स्टडी के बारे में बताता है, हाउ कंपनी इज लीवरेज्ड, हाउ कंपनी इज लीवरेज्ड। लीवरेज का मतलब है कि वो फर्म जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मनी भी इन्वॉल्व है, हाउ कंपनी इज लीवरेज्ड, राइट। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके थे, परसेंटेज चेंज इन EPS विच इज द अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट EBIT विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को मेजर करना चाहें, आप ये देखना चाहें कि अगर EBIT में कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अगर उसमें 10% का चेंज आया और कंपनी की EPS में वो चेंज 15% हुआ, तो कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज है 1.5 विच इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.5। We need to understand this 1.5 in a way कि EBIT में थोड़ा चेंज होने की वजह से आपका EPS मैग्नीफाई कर गया बाय 15%। EBIT में 10% चेंज आया, EPS में 15% चेंज आया। तो देखा जाए अगर कंपनी की अर्निंग 10% से बढ़ती है, तो कंपनी का EPS 15% से बढ़ जाता है। दिस इज समथिंग द फाइनेंशियल लीवरेज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप कह सकते हैं सर, इज इट वेरी गुड फॉर, इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी, बिकॉज नाउ इन केस ऑफ द EBIT, कंपनी मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका क्वार्टरली प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हुआ। नाउ इफ यू लुक एट द EPS कंपनी का 15%, विच इज अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय 15%, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स। यस, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये 1.5 क्यों आया? Why this EPS, why this financial leverage is 1.5? It simply means, because हम already numerical कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल लीवरेज इफ इट इज मोर देन वन, इसका मतलब है कंपनी ने उधार का पैसा लिया हुआ है और साथ के साथ कंपनी उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रही है, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे ओनली, ठीक है। तो दिस इज द फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर द वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु अटेंड द क्लासेस, therefore I'm going to give you one numerical here. I'm going to elaborate all these things with the help of the numerical in case of the financial leverage, so that we can easily understand कि किस तरह से ये फाइनेंशियल लीवरेज काम करता है एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, राइट। फिर उसके मैं कॉन्स के बारे में भी बात करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बना रहा हूँ एंड वी विल टेक दैट एग्जांपल। नाउ देयर आर टू सिचुएशंस। मान लेते हैं कंपनी का Q1 का रिजल्ट है एंड दिस इज कंपनीज Q2 रिजल्ट, राइट। इट्स अ लिस्टेड कंपनी।
company's EBIT, which is earning before interest and taxes, they are given to us. This is something, for example, 10 lakh is the EBIT of the company. Now we all know इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया. नाउ इफ आई डिडक्ट इंटरेस्ट, हो सकता है कंपनी हैज टेकन द डेट मनी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी है, इक्विटी भी है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी है. नाउ द इंटरेस्ट, and now company is paying interest. For example, the company is paying interest of rupees 1 lakh on that debt. Now we can say the EBT, which is earning before taxes, is now 9 lakh. 9 lakh का अर्निंग बिफोर टैक्सेस है कंपनी के पास. इफ आई डिडक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल द टैक्सेस आर 10%. मैं टैक्सेस को 10% मान रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, 10%. If I consider taxes are 10%, it means the 90,000 is the taxes, right? And if 90,000 are the taxes, then 8,10,000 is the profit after tax. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 8,10,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ कंपनी. ठीक है. अब आपको पता होगा that this profit after tax of rupees 8,10,000 is solely available to the shareholders, the equity shareholders. ठीक है. अब देख लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात कर लेते हैं. Number of equity shareholder, total number of equity shares, total number of equity shares are, for example, 1 lakh. 1 lakh is the total number of equity shares. तो अगर मैं आपसे EPS की बात करूं, what is the EPS here? EPS is 8 lakh divided by 1 lakh. तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी 8.10. कुछ नहीं करना, आपको 8,10,000 को डिवाइड करना बाय 1 लाख. इफ माय कैलकुलेशन इज राइट, इट इज EPS इज अर्निंग पर शेयर इज 8 रुपीज 10 पैसा. इसका मतलब है जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, 8 रुपये 10 पैसे हर एक शेयर पे अर्न करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर प्राइस. शेयर प्राइस की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे. एक शेयर पर अगर इफ आई एम द शेयर होल्डर, इफ आई होल्ड अ शेयर, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आई एम अर्निंग 8 रुपीज 10 पैसा फ्रॉम दैट शेयर ओनली. ठीक है. तो ये हमें समझ आया. नाउ EBIT के केस में अब हम बात करते हैं. मान लीजिए Q2 का रिजल्ट आता है फर्म का, एंड नाउ इन द Q2 रिजल्ट्स आर वेरी गुड, रिजल्ट आर सेटिस्फैक्टरी. नाउ द EBIT ऑफ द कंपनी इट हैज इंक्रीज्ड. फॉर एग्जांपल द EBIT इज नाउ 12 lakh. तो कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का EBIT, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, हैज गॉन अप बाय 20%. अब देखिए इंटरेस्ट पेमेंट तो सेम रहेगी, हम ये भी अज्यूम करेंगे कि कंपनी ने और कोई डेट मनी नहीं लिया है, देयरफॉर द इंटरेस्ट पेमेंट इज इट रिमेन सेम, व्हिच इज 1 लाख. नाउ टोटल होगा 11 लाख इज व्हाट? 11 लाख इज समथिंग अर्निंग बिफोर टैक्सेस. EBT इज 11 लाख. गेट इट. नाउ द टैक्सेस, अब आप टैक्स लगाएंगे कितना? वी ऑल नो द टैक्सेस आर 12 में से 1 गया 11, राइट? टैक्सेस आर 10% ऑफ इट. Now 11 lakh का 10% is going to be 1,10,000 is this, right? Now the profit after tax, the profit after tax. See the profit after tax, how much is the profit after tax? 11 lakh में से 1 lakh गया 10 lakh, 10 lakh में से 10,000 और गया, just 9,90,000. 9,90,000 is the profit after tax. अब देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो सेम ही रहेगा, which is 1 lakh here. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब EPS की बात कर लेते हैं, विच इज अर्निंग पर शेयर. EPS इज नाउ 1 lakh. 9,90,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख. तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 रुपये 90 पैसे, 9 रुपीज 90 पैसा. ठीक है. नाउ इफ यू कंपेयर दिस EPS, अब हमें एक चीज तो क्लियर है, कंपनी का EBIT कितना इंक्रीज हुआ था? 10 lakh से 12 lakh हुआ था, which is 20%. Company's EBIT was increased by 20%. Now, if you look at the EPS of the company, earning per share of the company, sorry, okay, let me calculate this EPS. Total change is 8 rupees 10 paisa से 9 rupees 90 paisa. The total change is 1 rupee 80 paisa, right? Total change is 1 rupees 80 paisa. 1 rupees 80 paisa. Now, if I divide this 1 rupees 80 paisa,
Just a minute. This 1 rupees 80 paisa divided by 8 multiply. It should be. It is 22.22%. Yes, 22.22% change. अब देखिए, although change is very minute, but at the same time, the idea we have got is clear. See, EBIT में change आया 20% का, EPS में change आया 22% का, almost just 12%. Now you can see EBIT changes by, for example, 10%. Now the EPS increases by 11%. It means there is more changes in the EPS. So basically, what happens here? यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको पता लगेगा EBIT अपॉन EPS द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी व्हाट. मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसे आप 10 कर लेते हैं. 10% change in the EPS, EBIT, and change in this 11.11, which is basically roughly 1.11. 1.11 is what? Is the degree of फाइनेंशियल लीवरेज DFL. ये 1.11 क्या शो करता है कि अगर EBIT में 1% का चेंज आया तो कंपनी की EPS में 1% से ज़्यादा चेंज आया. This is the factor basically, right? This is the multiplier factor. What does it tell us? It tells us this because of the financial leverage, because of this interest payment. Interest payment is a responsible here. इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ऐसा हुआ. आप देख सकते हैं 1 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ है और 1 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर है. इसकी वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्री फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन 1. इट सिंपली स्टेट्स इट. अगर आपको किसी कंपनी का DFL 1 से ज़्यादा मिलता है तो आप यकीन मानेंगे इस बात पर कि वो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, विच इज़ द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. नाउ अब हमें पूरा क्लैरिटी मिली कि कैसे ये EPS इंक्रीज हुआ, कैसे EBIT में चेंज होने की वजह से. नाउ we also have the alternate formula of this degree of freedom leverage. एक alternate formula भी हम यूज करते हैं इसका. मैं एक alternate formula आपको बता रहा हूँ DFL का, which you all can use. EBIT divided by PBT, or in short I can write EBT. EBIT divided by EBT. This is also the formula of degree of freedom, a degree of financial leverage. Okay, I'll explain it. मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, जस्टिफाई भी करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ आना चाहिए, ठीक है. देखिए, what you people can infer with this idea of the degree of financial leverage, आप कह सकते हैं सर ये तो बहुत अच्छा लीवरेज है सर. फाइनेंशियल लीवरेज इज वेरी गुड लीवरेज, क्योंकि इसकी वजह से EBIT में थोड़े से चेंज की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को EPS में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. बट एट द सेम टाइम अब इसका ठीक अगर रिवर्स केस आप लें, इन केस द EBIT डिक्रीजेस, when the EBIT will decrease, the EPS will also decrease, but in a greater proportion. उसमें और भी ज़्यादा तेजी से गिरावट आएगी. यानी कि what we can say, the financial leverage is known as a double-edged sword. It is known as double-edged sword. तो हिंदी में इसे कहा जा सकता है दो-धारी तलवार. Yes, it is. एंड इसको इस तरह से एज इट इज़ बुक्स में या इंटरव्यूज में यूज़ भी किया जाता है. दे स्पेसिफिकली आस्क why the financial leverage or why the debt money is called as a double-edged sword. Now we have the answer, right? Because if you use it judiciously, if you use it proportionately, debt money का देखिए फायदा है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं in our first discussion. The cost of debt money is lesser. जब हमने cost of specific capitals की बात की थी, we get to know the cost of equity is highest, cost of preference share is in middle, and the cost of debt money is highest. Cost of debt money is lowest, mainly because of its tax shield advantages. ठीक है. अगर कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मनी लेती है, डेट से पैसा उठाती है, तो कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है टैक्स शील्ड का.
and because of that tax shield, the company's overall weighted average cost of capital reduces. ये फायदेमंद है, डेट मनी को यूज करना फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है, इसके लिए भी हैव द सिग्नलिंग थियरी, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, बट डेट मनी का फायदा है. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, द थर्ड यूनिट, वी विल आल्सो सी वन थिंग. आप ये भी पाएंगे डेट मनी का फायदा एक एक्सटेंट तक है. एक एक्सटेंट के बाद अगर आप डेट लेते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ने लगी. आपका फाइनेंशियल लीवरेज जितना ज़्यादा जाता रहेगा उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता रहेगा. आई होप वी नाउ वी कैन रिलेट एवरीथिंग. ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. एंड अगर क्लास होती तो मैं आपसे कहता टेक द स्क्रीन शॉट, but obviously if you are seeing this video you can also take the screenshot in your mobile phone, in your laptop. Okay, तो अब मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँगा. ठीक है, मैं चेंज यहाँ पर करूँगा बट एक न्यू स्क्रीन लेकर, सो दैट मैं आपको यहाँ से क्लियर करता भी रहूँ साथ के साथ. नाउ लुक एट दिस. ओके फाइन. ठीक, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के दो फॉर्मूलेज अभी तक हमने देखे. द फर्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. देखिए, अगर कभी भी याद करने में दिक्कत आए तो आप इसको लीवरेज की तरह याद कीजिए. लीवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कितना लीवरेज पावर देता है. इट इज समथिंग, इट इज सेम एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला वी हैड सीन इन आवर 12th क्लास, कि प्राइजेस में चेंज कितना आया उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया. तो वी वर इंटरेस्टेड इन सीइंग द चेंज इन डिमांड. प्राइस में तो चेंज कर दिया, तो प्राइस देयर वाज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड द चेंज इन द डिमांड वाज डिपेंडेंट फैक्टर. नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, ईबीआईटी में चेंज आया, उसकी वजह से ईपीएस में चेंज तो आएगा, बट कितना आएगा. अब देखिए, जब भी इस तरह के फॉर्मूले लिखे जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, तो हमेशा इसे लिखा जाता है डिपेंडेंट फैक्टर इज इन न्यूमरेटर एंड द इंडिपेंडेंट फैक्टर इज इन डिनोमिनेटर. हमेशा ऐसा होता है. तो मैंने आपको लीवरेज जब स्टडी कराई थी इन वेरी फर्स्ट क्लास, आई टोल्ड यू स्ट्रेट फॉरवर्डली कि लीवरेज का मतलब ही क्या है. अगर आप ग्रामेटिकल मतलब भी देखें, लीवरेज स्टडी सीज द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट फैक्टर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर. ठीक है, इसलिए फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जाता है. तो याद करने के लिए आपके लिए आसानी रह सकती है कि जो डिपेंडेंट फैक्टर है हमेशा ऊपर आता है, इंडिपेंडेंट फैक्टर का चेंज नीचे आता है. तभी तो आपको चेंज पता लगे ना, कितना चेंज आया. ठीक है, तो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी. ओके, नाउ एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ईबीटी. बुक्स में पीबीटी भी है, बट मैं ईबीटी, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. अब ये ऐसा क्यों बना, पहले ईबीआईटी आता है उसके बाद ईबीटी आता है, राइट. इफ यू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, मैं आपसे पूछूं क्या डिफरेंस होता है ईबीआईटी एंड ईबीटी में. सिर्फ एक डिफरेंस होता है, ईबीआईटी इक्वल्स टू ईबीटी plus interest. It means there is only one difference between EBIT and EBT is interest payment. इंटरेस्ट पेमेंट, इन दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ इंटरेस्ट का है. EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दें तो आपके पास आता है EBT. सिंपल. इज दैट क्लियर, राइट. तो ये होता है. यही फॉर्मूला क्यों यूज किया गया फाइनेंशियल लीवरेजेस के लिए, इसके पीछे रीजन, there is a specific reason why we are using this specific formula here, and I'll tell you this. सबसे पहले आपको याद करना होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का रेसिप्रोकल है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, interest coverage ratio, it tells us how much is earning, how much earnings are capable to cover the interest payment. आपकी अर्निंग कितने गुना है आपके इंटरेस्ट, गुना मतलब मल्टीपल, राइट.
how much your earning is multiple or capable to cover your interest payment which is the fixed financial charges. क्योंकि आपके पास अर्निंग हो या ना हो, आपके पास EBIT जीरो हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी ही करनी है. दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द डेट मनी, राइट. डेट मनी कम्स विद दिस कर्स कि उधार जरूर ले लो, सस्ता भी पड़ेगा बट प्रॉफिट होगा तभी फायदा है उसका. ठीक है. नाउ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं, interest coverage ratio, it basically talks about the EBIT, how much EBIT is sufficient to cover the interest payment. Now look at this one. This is the interest coverage ratio. मान लेते हैं कंपनी का EBIT आया 20 करोड़ रुपीज इन अ क्वार्टर. कंपनी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अबाउट 20 करोड़. कंपनीज interest payment was 5 crore, for example, 5 crore. Now we can say company's EBIT is able or sufficient to cover interest payment 4 times. यानी कंपनी का EBIT इतना है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट को 4 बार कवर कर सकता है. तो क्या ये अच्छा साइन है? नहीं है. देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन केस ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ICR इज 4, इट इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी. अच्छा भी माना जाता है. बैंकिंग में तो बहुत अच्छा माना जाता है 4 का. ठीक है. बैंकिंग में तो दे आर द बैंक्स विच आर हैविंग द NPA इश्यूज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनका तो 1 के आसपास घूम रहा है, विच इज वेरी लेस, राइट. नाउ लुक एट दिस. यानी कि आपकी अर्निंग आपके इंटरेस्ट के 4 गुना है, तो आप इजीली अपने इंटरेस्ट पेमेंट कवर अप कर पा रहे हैं. और यू कैन सी व्हेन यू लुक एट कि ठीक है, कंपनी इज एबल टू कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट. इट मींस कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो, इफ यू विल हैव टू रीड द डेट इक्विटी रेशियो विद दिस, तो कंपनी का रेशियो भी सेटिस्फैक्टरी है. ठीक है. एज लॉन्ग एज कंपनीज का EBIT इजिली कवर कर पा रहा है. ठीक है. तो जितना ही ज्यादा रेशियो होगा कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होगा. ठीक है. अब देख लेते हैं. अब आप इस फॉर्मूले को ही यूज कर लें. EBIT माइनस इंटरेस्ट which is EBT. Now EBIT was 20 crore, interest payment was 5 crore. Now EBT is 15 crore. Now look at this. If you compare EBIT and EBT, this 20 crore and 15 crore काफी पास है. पास का मतलब they do not have much differences. क्यों नहीं है much differences? Because somehow the interest payment is lesser, right. अगर ये 1 CR ही होता इंटरेस्ट पेमेंट, तो EBIT कितना होता? 20 करोड़ होता एंड द EBT would have been 19 CR. तो बहुत कम डिफरेंस था. एग्जैक्टली. तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला टेल्स अस द क्वेश्चन. Basically, if I use this formula, 20 CR divided by 15 CR, it is more than 1 in this case. It is more than 1. Now look at this. This formula financial leverage show कर रहा है. This formula shows the financial leverage. Yes, company has a financial leverages. लेकिन ये जितना 1 के पास आता रहेगा, जितना ज़्यादा 1 के पास आता रहेगा, उसका मतलब होगा कंपनी हैज़ लेस डेट मनी और द लेस फिक्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. ठीक है. इंटरेस्ट CR, ICR एंड दिस फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला, दे आर रेसिप्रोकल इन नेचर. ICR जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. एंड बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं. जितना कम ये रेशियो होगा विच इज द फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला, उतना अच्छा होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क एंगल. बेनिफिट भी है उसके, बट साथ में रिस्क भी है. ठीक है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. यानी आप फाइनेंशियल लीवरेज को 2 अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं. एक तो कंपेरेटिव पोर्शन में व्हेन वी हैड यूज दिस फॉर्मूला, और आपको अगर सिंगल डेटा दिया गया है तो आप यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं. EBIT of the firm is 50 crore, 50 CR. Interest payment is 1 CR. Now if you look at this, ICR आप डायरेक्ट बता देंगे, सर ICR इसका 50 है.
ICR is 50. Why? Because interest payment 1 CR and the EBIT is 50 CR. It means प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 टाइम्स है इंटरेस्ट को कवर करने में. इट मीन्स कंपनी हैज मोर क्यूजन. कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज बहुत कम है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है इस केस पे. कोई कंपनी मजे से इंजॉय कर रही है कि 50 करोड़ रुपीज का ईवीआईटी है, इंटरेस्ट पेमेंट इज जस्ट 1 करोड़. क्या नहीं पे कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे. देयरफॉर द कंपनी हैज 50 टाइम क्यूजन टू पे इट बैक. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दिस. अब इसका मैं फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करूंगा. नाउ लुक एट द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ दिस फर्म. वो कैसे होगा? जैसे मैंने बताया, EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT डिवाइडेड बाय EBT. नाउ लुक एट दिस. EBIT कितना है? 50 करोड़. EBT कितना है? EBT ऑब्वियसली 50 CR माइनस 1 CR विच इज 49. नाउ लुक एट दिस. कितना कम आएगा? It should be just 1.0 कुछ करके, right? It is more closer to 1. It is almost 1. इसका मतलब है कंपनी के केस में, in this company, the degree of financial leverage is more closer to 1. It simply signifies us that the company has very less debt money in its capital structure. Obviously, इस कंपनी के केस में फाइनेंशियल रिस्क कम है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं सर, तो इस कंपनी का EBIT में जितना चेंज आएगा EPS में भी ऑलमोस्ट उतना ही चेंज आएगा. बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली. अब देखिए दूसरा केस ले लेते हैं. सेकंड ऑल्टरनेट सेकंड केस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं. एंड आई बिलीव आपको, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर विद यू ऑल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग एज मच एज आई कैन. जैसे कि आप, क्योंकि अभी तो आप पूछ भी नहीं सकते माइक ऑन करके, therefore I am trying it, and in case नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे एक एक डाउट को टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ फाइन. एक सेकंड फॉर्म है जिसका EBIT है, फॉर एग्जांपल 50 CR. सेम एग्जांपल ले लेते हैं. एंड कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट इज 39 CR. नाउ लुक एट दिस. 50 CR कमाते हैं, उसमें से 39 तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में दे देते हैं. So this company has a very high level of debt basically, and the company is more prone to financial risk. सिर्फ इतना डेटा देख के पता लग गया हमें. ठीक है. Now the interest coverage ratio 50 CR divided by 39 CR. Obviously it is more than 1. It is more than 1. Let me calculate this. It should be 1.25. Almost 1.25 आना चाहिए. 50 divided by 39. 1.28. Okay, fine. 1.2820. It means company has just 1.28 time cushion to complete or to paid interest. कब ये 50 के आसपास हो जाए पता नहीं लगेगा, और कंपनी की अर्निंग कब 39 से नीचे चले जाए, 39 के आसपास आए, बिकॉज कंपनी हैज वेरी लिटिल क्वेश्चन हियर, वेरी लिटिल रूम, राइट. तो ICR इज वेरी लेस है. ये बैंकिंग कंपनीज के केस में ज़्यादातर होता है कि इनका ICR इतना कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है. अब इस कंपनी के केस में आप देखेंगे EBT एंड EBIT में मेजर डिफरेंस, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत बड़ा पार्ट है. EBIT 50 CR एंड हियर EBT इज जस्ट रिमेन 11 करोड़, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें से चला गया ना, निकल गया. EBT जस्ट रिमेन 11 CR. नाउ आप फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं. हाउ डू डू इट? 50 CR divided with just 11 CR, which is 11 fours are 44, 4.60, 11 fives are फिर again 5, 4.54 to be very precise. 50 CR divided by 11, which is 4.5454. यही चलता रहेगा in loop. This is 4.5454. Now look at this. Degree of freedom leverage is very high. एक से बहुत दूर है. इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, कंपनी हैज अ वेरी हाई डेट in its capital structure, therefore the company is making a very huge payment of the interest. obviously आप ये भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सर इसका मतलब ये भी तो है ना कि कंपनी के
ईबीआईटी में 1% अगर चेंज आया तो कंपनी के ईपीएस में से 4.544 का चेंज आएगा। तो अच्छी बात भी तो है ना। वैसे रिस्क का मतलब ये होता है, एक तरफ रिटर्न है तो दूसरी तरफ ये भी तो है ना। मान लो कंपनी का रेट 1% कम हो गया ईबीआईटी, तो ईपीएस सीधा 4.5454 से कम हो जाएगा एंड द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी विल टम्बल, राइट। जल्दी से कम हो जाएंगे उसके, क्योंकि शेयर होल्डर्स की अर्निंग एकदम से वाइप आउट हो रही है। ईबीआईटी में 1% चेंज आया, बट द ईपीएस चेंज बाय 4.5%, आई मीन इट इज ऑलमोस्ट फाइव टाइम। तो दोनों तरह से आपको देखना है। Therefore, it is known as a double-edged sword. I hope this discussion is now very useful to all of us. ठीक है, तो अभी मैंने इतना आपको बताया, एक दो न्यूमेरिकल्स भी लूँगा साथ में, और जब नेक्स्ट क्लास होगी इसकी जो थोड़ी बहुत थियरी है वो कंप्लीट करके फिर कंबाइंड लिवरेज भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल आई नीड ओनली वन क्लास विद यू ऑल। तो अब जस्ट गिव मी 1 or 2 minute ब्रेक, आई जस्ट सी द न्यूमेरिकल, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक है। ओके फाइन क्लास, एक अच्छा न्यूमेरिकल है एंड यू वुड बी मोर देन हैप्पी बिकॉज इफ यू गेट टू नो ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है एंड दिस वाज आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। ज़्यादातर मैं वही न्यूमेरिकल क्लास में करा रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो एटलीस्ट कि किस तरह का पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है और आप यू वुड लव कि इस तरह के एग्जाम्पल दिया है अगर अभी तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया। तो ऐसे न्यूमेरिकल में मैंने आपको साथ के साथ करा भी दी है। वो छोटा सा न्यूमेरिकल, इट सेज फॉर ए लिमिटेड EBIT has increased from 200 lakhs to rupees 250 lakhs। यानी कंपनी का जो EBIT है ना वो कितना था, 200 lakhs था। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 250 lakhs, बढ़ गया है, इतना हो गया है। नाउ EPS has increased and in response the company's EPS has increased from how much, from 5 per share to 10 per share। 5 रुपए पर शेयर से लेकर सीधा 10 पर शेयर हो गया। नाउ लुक एट दिस, आपको बताना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और मुझे लगता है जितना मैंने क्वेश्चंस लिखा है इतने में आपने कैलकुलेट कर भी लिया होगा। ऑल वी नीड टू सी द चेंजेस, what exactly the percentage change in the EBIT from 200 lakh to 250 lakh। It simply means, if my calculations are not wrong, it is 25%। 200 से 250 हो गया, 200 का 50 कितना होता है, 25% होता है, it is 25%, right। So EBIT has increased by 25%। उसके रिस्पॉन्स में EPS तो सीधा डबल हो गया, 5 से 10 हो गया, यानी 100% चेंज आया। नाउ लुक एट दिस, EBIT में 25% चेंज की वजह से, सॉरी, EBIT में 25% चेंज की वजह से the EPS has increased by 100%, which is 4 time। Can I say it is the degree of freedom leverage? मैं freedom काफी यूज कर रहा हूँ, but it is not freedom, it is financial leverage। Degree of financial leverage, this degree of financial leverage is 4 times। एक से तो काफी दूर है, अगर ये एक होता इसका मतलब होता देयर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट, द फर्म इज अनलीवरेज्ड फर्म, उधार लिया ही नहीं हुआ। जैसे टीसीएस का केस देख लो, विप्रो का केस देख लो, मोस्ट ऑफ द फर्म्स which are in the IT sector in India, they are unleveraged। if they have the very less portion of the debt money in their capital structure।
ये भी आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए थे। ठीक है, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन का कुछ एक पूरा एक बुकेट है, यू कैन इजिली डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। For a company B Limited, EBIT has increased from 250 lakhs to 300 lakh, okay, and EPS has increased from 3 rupees to 3 rupees 60 पैसा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज चेंज अगर आपको आता है तो आप इजीली बता पाएंगे व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। राइट, तो आई डोंट थिंक मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत है। ऑल आई कैन से EBIT हैज इंक्रीज फ्रॉम 250 लाख टू 250 लाख टू 300। कितना इंक्रीज हुआ? 50 लाख। 50 लाख 250 का कितना है, विच इज 20%। 5 5 जा, यस 20%। तो EBIT has increased by 20%। समझ आया? Now EPS, EPS has sorry, this EPS has increased by what? This EPS has increased by from 3 rupees, from 3 rupee per share to 3 rupees 60 paisa. 3 rupee per share to, I think there are some problems. Yes, 250 lakh to 300 lakh, which is 50. Okay, fine. 55 is to 20% is the change in the EBIT, right? 20% change in the EBIT, and if the share price was 3 rupee per share to 3 rupee 60 paisa per share, 3 रुपये से कितना हो गया? 3 रुपये 60 पैसा पर शेयर हुआ। नाउ लुक एट द चेंज, which is 20%. 20% change is in 20% change is in the EPS. मुझे लगता है इंफॉर्मेशन में लिख ही देता हूँ, इट वुड बी मोर बेटर टू राइट द इंफॉर्मेशन। ओके, I'm little confused because मैंने आंसर गलत लिखा हुआ अपने नोट्स में, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल कंफ्यूज, मैंने आंसर गलत क्यों लिख दिया, हो सकता है वो गलती से हो गया। एनीवेज, तो EBIT it was from 250 lakh to 300 lakh, 250 to 300 lakh। कितना चेंज आया? परसेंटेज चेंज, if we calculate the percentage change here, it is 50, 55 is 20%, right? It is 20% change. EBIT increases by 20%, and the next information is EPS has increased. EPS is also increased from 300 paisa, यानी 3 रुपए से, it is now 360 paisa. How much change? How much change? 300 paisa is 100%, it is 20 paisa, 20% change. Now look at this, EBIT and EPS both are increasing by the same proportion, by 20% only. EBIT increased by 20% say, and it is also increased by 20%. What does it show? It simply shows us कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लीवरेज, अगेन फ्रीडम, सॉरी, इट्स अ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 1। सिंपल, कोई भी ज्यादा मैग्नीफाई नहीं हो रहा, EBIT जितना चेंज हो रहा है उतना ही EPS चेंज हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है? व्हेन नो इंटरेस्ट पेमेंट, व्हेन देयर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट। पहली बात, इट मीन्स नो डेट in capital structure। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखते ही बता दिया। DFL अगर 1 होगा, आंख बंद करके आप क्या कहेंगे? आंख बंद करके आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि कंपनी इज अनलीवरेज्ड फर्म, इट मींस फर्म इज अनलीवरेज्ड। क्या हम कह सकते हैं फर्म का कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। दिस फर्म हैज नॉट एक्सपोज टू फाइनेंस रिस्क। अब मान लीजिए सिंपल सा केस है, मैंने कोई EMIs नहीं ली हुई, मैंने कोई लोन नहीं लिया,
ना ही मैंने अपने फ्रेंड से कोई उधार का पैसा लिया। तो क्या मेरे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं? भाई बिल्कुल नहीं है। जब मैंने लिया ही नहीं हुआ, तो क्या मेरे फाइनेंशियल रिस्क होंगे? कोई रिस्क नहीं होगा। जब मैंने किसी से उधार ही नहीं लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी। हाँ, in case if I taken the if I borrowed the money from the financial institution and from my relatives and from my parents, yes, that could be the possibility that I would have default, right? मैं डिफॉल्ट कर सकता था, ठीक है? या मुझे कम से कम इतना अर्न तो करना होता जितना उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। यानी आई वॉज लिटिल एक्सपोज टू द फाइनेंशियल रिस्क। अगर मैं किसी से लोन लेने जाऊँ, इफ इफ आई आस्क माय फ्रेंड, तो हो सकता है वो पूछे कि सुमित अच्छा ये बताओ कि आपने किस किस से कितना पैसा लिया। एंड इफ आई शो माय बैलेंस शीट कि भाई देखो मेरे लाइबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, राइट? आई हैव टेकन नो, I mean, in reality, there should be everything in the liability, but it is when you make your personal statement, so it is not necessary कि आपकी liability होनी चाहिए। तो if I show कि भाई मेरे पास तो कोई liability ही नहीं है, तो वो देखेगा ना मेरा फाइनेंशियल रिस्क तो कुछ है ही नहीं अभी तक नहीं है। यानी ये जितना अर्न कर रहा है इसकी अर्निंग इजीली मेरे इंटरेस्ट पेमेंट को कहीं ना कहीं और मेरे डेट को सफिशिएंटली रिकवर कर पाएंगे। तो इफ आई हैव द लेस financial risk, I would more prone to have the loans. But in case if I started taking the loans from my friends, my family, from the financial institutions, तो वो ये भी तो देखेंगे भाई कमाता कितना है, क्या मेरा इंटरेस्ट पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या ये मेरी जो पेमेंट्स है, कमिटमेंट है डेट मनी की, प्रिंसिपल की, क्या वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वो इसलिए सोचने में आया क्योंकि उन्हें पता लगा कि आप तो इधर उधर हर किसी से लोन लेते हैं, जो भी मिल जाता है अपने स्टूडेंट से भी बात करते हैं, स्टूडेंट से भी लोन ले लेते हैं, राइट? तो यानी कि सर का एक तरह से लीवरेज जो है बहुत ही हाई है, राइट? विच इज फाइनेंशियल रिस्क इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द एग्जांपल पर्पसेस सो दैट वी ऑल कैन रिलेट विद इन अ पर्सनल लाइफ एज वेल। This is something the financial leverage, and I hope most of us are very clear on this why we use the financial leverage and the operating leverage in our study in analysis। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी में, इवन आई यूज इट फाइनेंशियल leverage and the operating leverage analysis when I start investing, when I see the company which is the good company or the bad company, where like how much company is exposed to ICR, how much company is exposed to DE ratio, right? What is the degree of financial leverage of the firm, operating leverage of the firm? Obviously real life में इतने easy आंसर नहीं आते क्योंकि there is a lot of complexity in the balance sheet of the firm, right? But again आ जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जब आ जाता है तो आपको पता लगता है कि फर्म का फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, फर्म का आप कह सकते हैं वॉट फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, कंबाइंड लीवरेज कितना आ रहा है, क्या ये परमिसिबल है इस इंडस्ट्री में, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आंसर्स आपको इन लीवरेज एनालिसिस से मिल जाते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए तो मैंने बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था। नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल मैं लेने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा इसके बारे में। देयर इज वेरी लिटिल थियरीज लेफ्ट, but I hope you people must have enjoyed this financial leverage part. Next class में we'll start with the combined leverages. Combined leverage कुछ नहीं है, जितना पढ़ा है उसको combine कर दो। Operating leverage और financial leverage को combine करके जो formula बनेगा which is combined leverage। combined leverage क्या काम करेगा, उस leverage से आपको पता लग जाएगा overall risk of the firm, financial risk as well as operating risk of the firm। ये करते ही हमारा ये चैप्टर लीवरेज एनालिसिस खत्म हो जाएगा। And then the next chapter of this, the last chapter of this unit would be theories of capital structure। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जल्दी करना पड़ेगा। एंड आई एम थिंकिंग कि एडमिशन ड्यूटीज़ जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, फर्स्ट कट ऑफ में मेरी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं थी इसलिए मैं एक दिन आपकी क्लास रख भी ली मैंने। बट इन द सेकेंड कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि एडमिशन्स भी बहुत होंगे कॉलेज में हमारे, और साथ के साथ मेरी मेन ड्यूटी होगी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऑल्टरनेट में निकालूँ, रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर दे दूँ, जैसे कि हमारा नुकसान ना हो एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि एडमिशन्स आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। ऑनलाइन में तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप सुबह से लेके बैठते हैं रात के 12-2 बजे तक एडमिशन में ही देखते रहते हैं पेंडिंग्स क्या हैं क्या नहीं है। रात के 2 बजे भी बच्चे की एप्लीकेशन आ जाती है, 3 बजे भी आ जाती है, आपको वो फिर देखनी पड़ती है। दैट्स वाई इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। ऑफलाइन में तो कुछ नहीं होता था, एक टाइम था, उसके बाद बच्चे यार लाइक चलो घर जाओ अपने, कल आना। तो दैट्स द कर्स ऑफ द ऑनलाइन थिंग्स। बट अगेन आई जस्ट वांट, कि आपकी क्लासेस ख़राब ना हो, तो प्लीज़ डू लिसन इट
ऑल द लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स हो आप देखिए, आगे अगर रिकॉर्डिंग भी मिलती है उनमें देखिए, क्लासेस आप लेते हैं तो क्लासेस में देखिए, दे विल रियली हेल्प यू लॉट टू हैव द गुड आइडिया। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप सबको समझ आया, नहीं आया है तो हम मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। थैंक यू सो मच।